لالٹین، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ میرا قیام بٹوت میں گو مختصر تھا، لیکن گو نہ گو روحانی مسرتوں سے پر۔ میں نے اس کی صحت افزا فضا میں جتنے دن گزارے ہیں، ان کے ہر لمحہ کی یاد میرے ذہن کا ایک جز بن کر رہ گئی ہے، جو بھلائے نہ بھولے گی۔ کیا دن تھے! بار بار میرے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز بلند ہوتی تھی، اور میں کئی گھنٹے اس کے زیر اثر بے خود اور مدہوش رہتا ہوں۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ انسان اپنی گزشتہ زندگی کے کھنڈروں پر مستقبل کی دیواریں استوار کرتا ہے۔ ان دنوں میں بھی یہی کر رہا ہوں، یعنی بیتے ہوئے ایام کی یاد کو اپنی مزمحل رگوں میں زندگی بخش انجیکشن کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ جو کل ہوا تھا اسے اگر آج دیکھا جائے تو اس کے اور ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ نظر آئے گا، اور جو کل ہونا ہے اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ آج سے پورے 4 مہینے پہلے کی طرف دیکھا جائے تو بٹوت میں میری زندگی ایک افسانہ معلوم ہوتی ہے، ایسا افسانہ جس کا مسودہ صاف نہ کیا گیا ہو۔ اس کھوئی ہوئی چیز کو حاصل کرنا دوسرے انسانوں کی طرح میرے بس میں نہیں۔ جب میں استقبال کے آئینہ میں اپنے آنے والی زندگی کا عکس دیکھنا چاہتا ہوں تو اس میں مجھے حال ہی کی تصویر نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی اس تصویر کے پس منظر میں ماضی کے دھندلے نقوش نظر آ جاتے ہیں۔ ان میں بعض نقش اس قدر تیکھے اور شوخ رنگ ہیں کہ شاید ہی انہیں زمانہ کا ہاتھ مکمل طور پر مٹا سکے۔ زندگی کے اس کھوئے ہوئے ٹکڑے کو میں اس وقت زمانہ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، جو شریر بچے کی طرح مجھے بار بار اس کی جھلک دکھا کر اپنی پیٹھ پیچھے چھپا لیتا ہے، اور میں اس کھیل ہی سے خوش ہوں، اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ ایسے واقعات کو جن کی یاد میرے ذہن میں اب تک تازہ ہے، میں عام طور پر دہراتا رہتا ہوں تاکہ ان کی تمام شدت برقرار رہے، اور اس غرض کے لیے میں کئی طریقے استعمال کرتا ہوں۔ بعض اوقات میں یہ بیتے ہوئے واقعات اپنے دوستوں کو سنا کر اپنا مطلب حل کر لیتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے ان دوستوں سے ملنے کا اتفاق ہو تو وہ آپ سے یقیناً یہی کہیں گے کہ میں قصہ گوئی اور آپ بیتیاں سنانے کا بالکل سلیقہ نہیں رکھتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ داستان سنانے کے دوران میں مجھے سامعین کے تیوروں سے ہمیشہ اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میرا بیان غیر مربوط ہے، اور میں جانتا ہوں کہ چونکہ میری داستان میں ہمواری کم اور جھٹکے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنے محسوسات کو اچھی طرح کسی کے دماغ پر منتقل نہیں کر سکتا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں ایسا شاید ہی کر سکوں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں اکثر اوقات اپنی داستان سنانے کے بعد جب ایسے مقام پر پہنچتا ہوں جس کی یاد میرے ذہن میں موجود نہ تھی، اور وہ خیالات کی رو میں خود بخود بہہ کر چلی آئی تھی، تو میں غیر ارادی طور پر اس نئی یاد کی گہرائیوں میں گم ہو جاتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بیان کا تسلسل یک لخت منتشر ہو جاتا ہے، اور جب میں ان گہرائیوں سے نکل کر داستان کے ٹوٹے ہوئے دھاگے کو جوڑنا چاہتا ہوں تو عجلت میں وہ ٹھیک طور سے نہیں جڑتا۔ کبھی کبھی میں یہ داستانیں رات کو سوتے وقت اپنے ذہن کی زبانی خود سنتا ہوں، لیکن اس دوران میں مجھے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ میرے ذہن کی زبان بہت تیز ہے اور اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ خود بخود بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ طبیعت اکتا جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی یاد کسی دوسرے واقعہ کی یاد تازہ کر دیتی ہے، اور اس کا احساس کسی دوسرے احساس کو اپنے ساتھ لے آتا ہے، اور پھر احساسات و افکار کی بارش زوروں پر شروع ہو جاتی ہے، اور اتنا شور مچتا ہے کہ نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جس روز صبح کو میری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نظر آئے، آپ سمجھ لیا کریں کہ ساری رات
मैं अपने ज़हन की किस्सा गोई का शिकार बना रहा हूँ। जब मुझे किसी बीते हुए वाक़े को इसकी तमाम शिद्दतों समेत महफूज करना होता है तो मैं कलम उठाता हूँ और किसी गोशे में बैठकर कागज़ पर अपनी ज़िंदगी के उस टुकड़े की तस्वीर खींच देता हूँ। ये तस्वीर भद्दी होती है या खूबसूरत, इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, और मुझे ये भी मालूम नहीं कि हमारे अदबी नक्काद मेरी इन कलमी तस्वीरों के मुतालिक क्या राय मुरतब करते हैं। दरअसल मुझे उन लोगों से कोई वास्ता ही नहीं। अगर मेरी तस्वीर कशी सकीम और खाम है तो हुआ करे, मुझे इससे क्या, और अगर ये उनके मुकर्रर करदा मयार पर पूरा उतरती है तो भी मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैं ये कहानियाँ सिर्फ इसलिए लिखता हूँ कि मुझे कुछ लिखना होता है। जिस तरह आदि शराबखोर दिन ढले शराब खाना का रुख करता है, ठीक उसी तरह मेरी उंगलियां बेइख्तियार कलम की तरफ बढ़ती हैं और मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरा रोए सुखन या तो अपनी तरफ होता है या उन चंद अफराद की तरफ जो मेरी तहरीरों में दिलचस्पी लेते हैं। मैं अदब से दूर और जिंदगी के नज़दीक तर हूँ। जिंदगी, जिंदगी, आह जिंदगी। मैं जिंदगी जिंदगी पुकारता हूँ, मगर मुझ में जिंदगी कहाँ है? और शायद यही वजह है कि मैं अपनी उम्र की पिटारी खोलकर उसकी सारी चीज़ें बाहर निकालता हूँ और झाड़ पोंछ कर बड़े करीने से एक कितार में रखता हूँ, और उस आदमी की तरह जिसके घर में बहुत थोड़ा सामान हो उनकी नुमाइश करता हूँ। बाज़ औक़ात मुझे अपना ये फेल बहुत बुरा मालूम होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। मेरे पास अगर ज़्यादा नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मुझ में सिफलापन पैदा हो गया है तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है गनीमत है। दुनिया में तो ऐसे लोग भी होंगे जिनकी ज़िंदगी चटियल मैदान की तरह खुश्क है, और मेरी ज़िंदगी के रेगिस्तान पर तो एक बार बारिश हो चुकी है। वो मेरा शबाब हमेशा के लिए रुखसत हो चुका है, मगर मैं इन दिनों की याद पर जी रहा हूँ जब मैं जवान था। मुझे मालूम है कि ये सहारा भी किसी रोज़ जवाब दे जाएगा, और इसके बाद जो कुछ होगा मैं बता नहीं सकता। लेकिन अपने मौजूदा इंतशार को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा इंजाम चश्मे फलक को भी नमनाक कर देगा। आह, खराबा फिक्र का अंजाम। वो शख्स जिसे अंजाम कार अपने वजनी अफकार के नीचे पिस जाना है, ये सतूर लिख रहा है, और मज़े की बात यह है कि वो ऐसी और बहुत सी सतरें लिखने की तमन्ना अपने दिल में रखता है। मैं हमेशा मगमूम व मलूल रहा हूँ, लेकिन शब्बीर जानता है कि बटौत में मेरी आहों की जर्दी और तपिश के साथ साथ एक खुशगवार मसरत की सुर्खी और ठंडक भी थी। वो आबो आतिश के इस बाहमी मिलाप को देखकर मुताज्जिब होता था, और गालिबन यही चीज़ थी जिसने उसकी निगाहों में मेरे वजूद को एक मुअम्मा बना दिया था। कभी कभी मुझे वो समझने की कोशिश करता था, और इस कोशिश में वो मेरे करीब भी आ जाता था, मगर दफतन कोई ऐसा हादसा वकूअ पज़ीर होता जिसके बायस उसे फिर परे हटना पड़ता था, और इस तरह वो नई शिद्दत से मुझे पुरअसरार और कभी पुरतसन्नो इंसान समझने लगता। इकराम साहब हैरान थे कि बटौत जैसी गैर आबाद और गैर दिलचस्प देहात में पड़े रहने से मेरा क्या मकसद है। वो ऐसा क्यों सोचते थे? उसकी वजह मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि उनके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं था। चुनाचे वो इस मसले पर गौर व फिक्र करते रहते थे। वजीर का घर उनके बंगले के सामने बुलंद पहाड़ी पर था, और जब उन्होंने अपने नौकर की जुबानी ये सुना कि मैं उस पहाड़ी लड़की के साथ पहरों बातें करता रहता हूँ, तो उन्होंने ये समझा कि मेरी दुखती हुई रग उनके हाथ आ गई है, और उन्होंने एक ऐसा राज मालूम कर लिया है जिसके अफशा पर तमाम दुनिया के दरवाजे मुझ पर बंद हो जाएंगे। लोगों से जब वो इस मसले पर बातें करते थे तो ये कहा करते थे कि मैं तायुश पसंद हूँ,
और एक भोली भाली लड़की को फांस रहा हूँ। और एक बार जब उन्होंने मुझसे बात की तो कहा, देखिए ये पहाड़ी लौंडिया बड़ी खतरनाक है, ऐसा ना हो कि आप इसके जाल में फंस जाएं। मेरी समझ में नहीं आता था कि उन्हें या किसी और को मेरे मामलात से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वजीर का कैरेक्टर बहुत खराब था और मेरा कैरेक्टर भी कोई खास अच्छा नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि लोग क्यों मेरी फिक्र में मुब्तला थे, और फिर जो उनके मन में था साफ साफ क्यों नहीं कहते थे। वजीर पर मेरा कोई हक नहीं था और ना वो मेरे दबाव में थी। इकराम साहब या कोई और साहब अगर उससे दोस्ताना पैदा करना चाहते तो मुझे इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। दरअसल हमारी तहजीब व मुआशरत की कुछ इस किस्म की है कि आमतौर पर साफ गोई को मायूब ख्याल किया जाता है, खुलकर बात ही नहीं की जाती, और किसी के मुताल्लिक अगर इजहार ख्याल किया भी जाता है तो गिलाफ चढ़ाकर। मैंने साफ गोई से काम लिया और इस पहाड़ी लौंडिया से जिसे बड़ा खतरनाक कहा जाता था अपनी दिलचस्पी का एतराफ़ किया। लेकिन चूंकि ये लोग अपने दिल की आवाज़ को दिल ही में दबा देने के आदी थे, इसलिए मेरी सच्ची बातें उनको बिल्कुल झूठी मालूम हुई और उनका शक बस बदस्तूर कायम रहा। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाता कि मैं अगर वजीर से दिलचस्पी लेता हूँ तो इसका बायस ये है कि मेरा माजी और हाल तारीख है, मुझे इससे निस्बत नहीं थी, इसीलिए मैं इससे ज़्यादा वाबस्ता था। वजीर से मेरी दिलचस्पी इस मोहब्बत का रिहर्सल थी जो मेरे दिल में उस औरत के लिए मौजूद है जो अभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। मेरी ज़िंदगी की अंगूठी में वजीर एक छोटा नगीना था, लेकिन ये नगीना मुझे अजीज़ था इसलिए कि उसकी तराश, उसका माप बिल्कुल उस असली नगीना के मुताबिक था जिसकी तलाश में मैं हमेशा नाकाम रहा हूँ। वजीर से मेरी दिल बस्तगी बेगर्ज नहीं थी, इसलिए मैं गर्जमंद था। वो शख्स जो अपने गम अफजा माहौल को किसी के वजूद से रौनक बख्शना चाहता हो, इससे ज़्यादा खुद गर्ज और कौन हो सकता है। इस लिहाज से मैं वजीर का ममनून भी था, और खुदा गवाह है कि मैं जब कभी उसको याद करता हूँ तो बेख्तियार मेरा दिल उसका शुक्रिया अदा करता है। शहर में मुझे सिर्फ एक काम था, अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुप्त अंधेरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहना, और बस। मगर बटौत में उस तारीकी के अंदर रोशनी की एक शुआ थी, वजीर की लालटेन। बिटियारे के यहाँ रात को खाना खाने के बाद मैं और शब्बीर टहलते टहलते इकराम साहब के बंगले के पास पहुंच जाते। ये बंगला होटल से करीबन 3 जरेब के फासले पर था। रात की खुनक और नीम मरतूब हवा में इस चहलकदमी का बहुत लुत्फ आता था। सड़क के दाएं बाएं पहाड़ों और ढलवानों पर मकई के खेत रात के धुंधलके में खाकिस्तरी रंग के बड़े बड़े कालीन मालूम होते थे, और जब हवा के झोंके मकई के पौधों में लर्जिश पैदा कर देते तो ऐसा मालूम होता कि आसमान से बहुत सी परियां उन कालीनों पर उतर आई हैं और हौले हौले नाच रही हैं। आधा रास्ता तय करने पर जब हम सड़क के बाएं हाथ एक छोटे से 2 मंजिला चौबी मकान के करीब पहुंचते तो शब्बीर अपनी मखसूस धुन में ये शेर गाता, हर कदम फितना है कयामत है, आसमां तेरी चाल क्या जाने। ये शेर गाने की खास वजह ये थी कि उस चौबी मकान के रहने वाले इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि मेरे और वजीर के ताल्लुकात अखलाकी नुक्ता निगाह से ठीक नहीं, हालांकि वो अखलाक के मानी से बिल्कुल ना आशना थे। ये लोग मुझसे और शब्बीर से बहुत दिलचस्पी लेते थे और मेरी नक्लो हरकत पर ख़ास तौर पर निगरानी रखते थे। वो तफरीह की गर्ज से बटौत आए हुए थे और उन्हें तफरीह का काफ़ी सामान मिल गया था। शब्बीर ऊपर वाला शेर गा कर उनकी ये तफरीह में मज़ीद इजाफा किया करता था। उसको छेड़छाड़ में ख़ास लुत्फ़ आता था।
यही वजह है कि उन लोगों की रिहाइश गाह के ऐन सामने पहुंचकर उसको ये शेर याद आ जाता था और वो फौरन इसे बुलंद आवाज में गा दिया करता था। रफ्ता रफ्ता वो इसका आदी हो गया था। ये शेर किसी खास वाक़े या तासुर से मुताल्लिक न था। मेरा ख्याल है कि उसे सिर्फ यही शेर याद था, या हो सकता है कि वो सिर्फ उसी शेर को गा सकता था, वरना कोई वजह नहीं थी कि वो बार बार यही शेर दोहराता। शुरू में अंधेरी रातों में सुनसान सड़क पर हमारी चहलकदमी 24 मकान के 24 साकिनों पर वो गैर मामूली तौर पर उजड़ और गंवार वाक़या हुए थे, कोई असर पैदा न कर सकी। मगर कुछ दिनों के बाद उनके बालाई कमरे में रोशनी नजर आने लगी और वो हमारी आमद के मुंतजर रहने लगे। और जब एक रोज उनमें से एक ने अंधेरे में हमारा रुख मालूम करने के लिए बैटरी रोशन की, मैंने शब्बीर से कहा, आज हमारा रोमान मुकम्मल हो गया है। मगर मैंने दिल में उन लोगों की काबिल रहम हालत पर बहुत अफसोस किया, क्योंकि वो बेकार 2-2, 3-3 घंटे तक जागते रहते थे। हस्बे मामूल एक रात शब्बीर ने उस मकान के पास पहुंचकर शेर गाया और हम आगे बढ़ गए। बैटरी की रोशनी हस्बे मामूल चमकी और हम बातें करते हुए इकराम साहब के बंगले के पास पहुंच गए। उस वक्त रात के 10 बजे होंगे। हू का आलम था, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। आसमान हम पर मर्तबान के ढकने की तरह झुका हुआ था और मैं ये महसूस कर रहा था कि हम किसी बंद बोतल में चल फिर रहे हैं। सुकूत अपनी आखिरी हद तक पहुंचकर मुतकल्लम हो गया था। बंगले के बाहर बरामदे में एक छोटी सी मेज पर लैंप जल रहा था और पास ही पलंग पर इकराम साहब लेटे किसी किताब के मुताला में मसरूफ थे। शब्बीर ने दूर से उनकी तरफ देखा और दफतन साधुओं का मखसूस नारा मस्ताना अलख नरिंजन बुलंद किया। इस गैर मुतवक्का शोर ने मुझे और इकराम साहब दोनों को चौंका दिया। शब्बीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर हम दोनों बरामदे में दाखिल होकर इकराम साहब के पास बैठ गए। मेरा मुंह सड़क की जानिब था। ऐन उस वक्त जब मैंने हुक्का की नैब मुंह में दबाई, मुझे सामने सड़क के ऊपर तारीकी में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। फिर एक मुतहरिक साया नजर आया और उसके बाद रोशनी एक जगह साकिन हो गई। मैंने ख्याल किया कि शायद वजीर का भाई अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। चुनाचा इधर देखना छोड़कर मैं और शब्बीर और इकराम साहब के साथ बातें करने में मशगूल हो गया। दूसरे रोज शब्बीर के नारा बुलंद करने के बाद फिर अखरोट के दरख्त के अकब में रोशनी नमूदार हुई और साया हरकत करता हुआ नजर आया। तीसरे रोज भी ऐसा हुआ। चौथे रोज सुबह को मैं और शब्बीर चश्मे पर गुस्ल को जा रहे थे कि ऊपर से एक कंकर गिरा। मैंने बैक वक्त सड़क के ऊपर झाड़ियों की तरफ देखा। वजीर सर पर पानी का घड़ा उठाए हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो अपने मखसूस अंदाज में हंसी और शब्बीर से कहने लगी, क्यों जनाब, ये आपने क्या वतीरा इख्तियार किया है कि रोज हमारी नींद खराब करें। शब्बीर हैरत ज़दा होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं वजीर का मतलब समझ गया था। शब्बीर ने उससे कहा, आज आप पहेलियों में बात कर रही हैं। वजीर ने सर पर घड़े का तवाजुन कायम रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इतनी देर तक लाल टैन जलाकर अखरोट के नीचे बैठी रहती हूँ और आपसे इतना भी नहीं होता कि फूटे मुंह से शुक्रिया ही अदा कर दें। भला आपकी जूती को क्या गर्ज पड़ी है? ये चौकीदारी तो मेरे ही जिम्मे है। आप टहलने को निकले और इकराम साहब के बंगले में घंटों बातें करते रहें और मैं सामने लाल टैन लिए ऊँघती रहूं। शब्बीर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, ये क्या कह रही हैं? भाई मैं तो कुछ ना समझा, ये किस धुन में अलाप रही हैं? मैंने शब्बीर को जवाब न दिया और वजीर से कहा, हम कई दिनों से रात गए इकराम साहब के यहाँ आते हैं। 2-3 मरतबा मैंने अखरोट के पीछे तुम्हारी लाल टैन देखी, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम खास हमारे लिए आती हो।
اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم ناحق اپنی نیند کیوں خراب کرتی ہو؟ وزیر نے شبیر کو مخاطب کر کے کہا، آپ کے دوست بڑے ہی ناشکرے ہیں۔ ایک تو میں ان کی حفاظت کروں اور اوپر سے یہی مجھ پر اپنا احسان جتائیں۔ ان کو اپنی جان پیاری نہ ہو پر۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور بات کا رخ یوں بدل دیا، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں ان کے بہت دشمن پیدا ہو گئے ہیں، پھر آپ انہیں کیوں نہیں سمجھاتے کہ رات کو باہر نہ نکلا کریں؟ وزیر کو واقعی میری بہت فکر تھی۔ بعض اوقات وہ مجھے بالکل بچہ سمجھ کر میری حفاظت کی تدبیریں سوچا کرتی تھی، جیسے وہ خود محفوظ و مامون ہے اور میں بہت سی بلاؤں میں گھرا ہوا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نہ ٹوکا تھا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس شغل سے باز رکھوں جس سے وہ لطف اٹھاتی ہے۔ اس کی اور میری حالت بعین ہی ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی منزل کی طرف جانے والے مسافر تھے جو ایک لک و دک صحرا میں ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ اسے میری ضرورت تھی اور مجھے اس کی، تاکہ ہمارا سفر اچھی طرح کٹ سکے۔ میرا اور اس کا صرف یہ رشتہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہم ہر شب مقررہ وقت پر ٹہلنے کو نکلتے۔ شبیر چوبی مکان کے پاس پہنچ کر شعر گاتا، پھر اکرام صاحب کے بنگلے سے کچھ دور کھڑے ہو کر نعرہ بلند کرتا۔ وزیر لالٹین روشن کرتی اور اس کی روشنی کو ہوا میں لہرا کر ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ شبیر اور اکرام صاحب باتیں کرنے میں مشغول ہو جاتے اور میں لالٹین کی روشنی میں اس روشنی کے ذرے ڈھونڈتا رہتا جس سے میری زندگی منور ہو سکتی تھی۔ وزیر جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہتی۔